बच्चों, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हम चर्चा करेंगे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomials. The standard form of quadratic polynomials is ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers and a does not equal to 0. Examples: 3x square plus 3x plus 1 is a quadratic polynomial because its degree is 2. Similarly, root 2x square minus 1 is a quadratic polynomial because its highest degree is 2. Similarly, 5x square plus 4x is also quadratic polynomials because its highest degree of 2. Quadratic equations, an equation of degree 2 is known as quadratic equation, and it is written as ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real constant and a does not equal to 0. Third point, roots of a quadratic equation. If the numbers alpha and beta are two zeros of the quadratic polynomials px equal to ax square plus bx plus c, we say that alpha and beta are the two roots of the corresponding quadratic equation. If bx equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0. It is the quadratic polynomials because it's having two roots, alpha and beta. Alpha and beta is the solution of its quadratic polynomials ax square plus bx plus c equal to 0. To form a quadratic equation with given roots. To form a quadratic equation with given roots, let alpha beta be the given roots and let it be required to find the equation whose roots are alpha and beta. Since alpha and beta are the roots, therefore x minus alpha equal to 0 and x minus beta equal to 0. Therefore x minus alpha फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, it is the required equation. It is the required equation. In other words, the equation x square minus sum of roots x plus product of roots equal to 0. Product of roots equal to 0. इस पर विशेष ध्यान देना है। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है।
रिमेंबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स एल्फा प्लस बीटा. एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस alpha into beta equal to 0. Implies that x square minus sp plus b, where s sum of the roots of the required equation, यानी s equal to alpha plus beta, s equal to alpha plus beta, b product of the roots of the required equation, product of the roots of the required equation, यानी p equal to alpha into beta, p equal to alpha into beta. Standard quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. It is the standard quadratic equation. It has two roots, alpha and beta. It has two roots, alpha and beta. First, sum of roots alpha plus beta equal to minus b by a equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Product of roots alpha into beta equal to c by a equal to constant term upon coefficient of x square. ये फार्मूला है. इन फार्मूलों को बच्चों आपको ध्यान में रखना है. अब हम कुछ अदर्स फार्मूलों की चर्चा करेंगे. सम यूजफुल रिलेशंस. देखिए, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद कर सकते हैं. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस क्या होता है? जैसे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका. सम ऑफ द रूट्स इसका निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a. ठीक, ये आता है. अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? माइनस b बाई a. अगर अल्फा बीटा हम निकालें, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? c बाई a. क्या आएगा? c बाई a. ये आपको विशेष ध्यान रखना है ना. यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इसी प्रकार अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा. ठीक है. इसके बाद इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. क्या होता है यहाँ पर? ये थोड़ा गलत हो गया. ये होता है बीटा स्क्वायर, ये ब्रैकेट पर. क्लियर? फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है. फोर्थ, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा होता है.
अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, फिर ब्रैकेट्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, सेकंड ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर? इसी प्रकार 6 यूजफुल रिलेशन है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट्स रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसी प्रकार अल्फा 4 प्लस बीटा 4 फाइंड कर सकते हैं इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अल्फा 4 माइनस बीटा 4 आप फाइंड कर सकते हैं इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये यूजफुल रिलेशन थे। आप इसकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। बता दें प्रिय बच्चों, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव दैट following equation is a quadratic equation 4x square plus 5x plus 3 equal to 3x square plus 4x plus 2। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। The given equation is the given equation is 4x square plus 5x plus 3 equal to 3x square plus 4x plus 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग द टर्म ऑन द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ट्रांसफॉर्मिंग the term on the right hand side to left hand side we get। अब इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर, अब इसके साथ इसको लेते हैं इस तरफ माइनस 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर का ट्रांसपोजिंग किए लेफ्ट हैंड साइड, देन साइन विल बी चेंज। इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 5x। अब इसके बाद 4x का ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 3 है, प्लस 3 लिखेंगे। इसके बाद 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 3x स्क्वायर है। साइन किसका यूज करेंगे, प्लस का, यानी ये आ जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर 5x में से 4x लेस होगा,
यहाँ पर क्या आएगा बच्चों यक्स। 3 में से 2 लेस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें। क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इसमें चेक करना है, ये दिया गया पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसकी डिग्री जो है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। आइए इसको हम चेक करते हैं। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन को चेक करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Quadratic equation. It follows that 3x square plus 7x minus 2 equal to 0 is a quadratic equation. इसको नोट डाउन कीजिए। याद है? क्वेश्चन सेकेंड का पार्ट 2 चेक करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इज ए quadratic equation it follows that it follows that 3x square minus 4 equal to 0 is a quadratic equation. इसको नोट डाउन कीजिए। सादे आइए पार्ट 3 को चेक करते हैं। पार्ट 3 हमारा गिवन है x प्लस 3y(x) इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं x/1 प्लस 3y(x) इक्वल टू x स्क्वायर/1। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा x।
1 से डिवाइड करेंगे x आएगा, x में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच्चों क्या हो गया x स्क्वायर। x में x का डिवाइड हुआ 1 आया, 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा इक्वल टू x स्क्वायर बाई 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x क्यूब। अब इसको ब्रेक करके अगर हम लिखते हैं क्या आएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। कितना नोट डाउन कीजिए, नोट कर लिया? बता दे। इसका रीजन हम लिखेंगे हियर x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3 being a polynomial of degree 3, being a polynomial of degree of degree 3 is not quadratic so the given equation is not quadratic, so the given equation is not quadratic, not quadratic। इसको नोट डाउन कीजिए, नोट कर लिया? बिठा दें। Question third, prove that x equal to root 2 is the root of the quadratic equation x square plus root 2x minus 4 equal to 0। इसे हमें प्रूव करना है। दिया गया है रूट 2 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन है अथवा नहीं, है ना? सलूशन पहले हम लिखते हैं गिवन या वी है एक्स स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? सिंस अब इसमें क्या करेंगे, पुटिंग x equal to root 2, putting x equal to root 2 in the left hand side of the
given solution, given equation, चेक करते हैं। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें जो है x इक्वल टू रूट 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। भाई पढ़ा बच्चों? यस सर। रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 और रूट 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4। एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड लिए ना इक्वल टू 0 क्यों लिया? लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, ठीक है, 0 नहीं लिया। तो 2 प्लस 2 मिलकर के कितना हुआ 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड आ गया कितने के बराबर? 0 के बराबर। Therefore फिर यहाँ लिख देंगे Therefore x इक्वल टू x इक्वल टू रूट 2 is the solution, SOLUTION, solution of the given quadratic equation लिख देते हैं। इक्वेशन ठीक है, यस सर। ये प्रूफ हो गया। Therefore x इक्वल टू रूट 2 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्व कर लिया? यस सर। क्या दें? यस सर। For a quadratic equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0, determine which are the following are solution. First, x equal to 3 by 4. Second, x equal to minus 1. इसको हम बच्चों सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन। इसमें गिवन इक्वेशन कितना गिवन है? गिवन इक्वेशन है आपका क्या 2x स्क्वायर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे पुटिंग यहाँ पर 3/2 है। क्या है बच्चों ये 3/2। क्वेश्चन को सही करिए। पुटिंग x इक्वल टू 3/2 in the left hand side of the given equation। ठीक है, गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। पुटिंग x इक्वल टू 3/2 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन वी गेट। हम बच्चों लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3।
अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 का स्क्वायर, फिर -5 x की वैल्यू 3/2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 का स्क्वायर 9/4 -5 3 जा 15/2 प्लस 3। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इतना नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़े। फिर ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 9/2 -15/2 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? 9/2 -15/2 प्लस 3/1। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या आएगा? 2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा। इसको ऐड इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, 9 - 15। अब इसमें 1 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। 2 का जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 16। 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 - 15/2, यानी अब आएगा 0/2। 0/2 मीन्स क्या हो गया? 0। ये राइट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया? राइट हैंड साइड। इसकी मीनिंग क्या हो गई? Therefore नाम लिख देंगे THERE। Therefore x = 3/2 is the solution, solution of the given equation, इक्वेशन क्या गिवन है? 2x² - 5x प्लस 3 = 0। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया? मिटा दें? सेकेंड पार्ट, गिवन इक्वेशन 2x² - 5x प्लस 3 = 0। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या करेंगे? पुटिंग x = -1, x = -1 in the left hand side of the given equation. Given equation we get लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2x² - 5x प्लस 3। इसमें हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -5 यहाँ पर -1 प्लस 3। -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1। माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? प्लस। ये प्लस 3, कितना आ गया? 2 + 5 प्लस 3, 2 + 5 प्लस 3। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा? 10 डज नॉट इक्वल टू
0। इसका मतलब क्या हो गया? n डज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? therefore x इक्वल टू -1 is not solution of the given equation of the given equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0। यहाँ पर 0 नोट डाउन कीजिए। बता दे लिया। Question number 5. If x square minus 1 by 9 equal to 0, then find the value of x। ये सलूशन इसका होगा बच्चों। देखो x स्क्वायर माइनस 1 बाई 9 इक्वल टू 0। इतना आपने सॉल्व किया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना क्लियर? फिर अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 बाई 3 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 0। इतना क्लियर? फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इफ x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू 0, then x इक्वल टू 1 बाई 3। क्लियर? इसके बाद एंड इफ, यहाँ पर देखिए एंड इफ x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 0, then x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। ठीक है। अब लिखेंगे x इक्वल टू 1 बाई 3 एंड x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इज द solution of given equation x square minus 1 by 9 x square minus 1 by 9 equal to 0। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया? Question 6. If x equal to 12 and y equal to 5, then find the value of 9x square plus 49y square minus 42xy। ये इसका सलूशन, ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों। क्या है? ये क्वेश्चन गिवन है। इसका हम सलूशन करते हैं। सलूशन 9x स्क्वायर प्लस 49 y स्क्वायर माइनस
42xy। क्लियर? इसको और ब्रेक कर देते हैं। 3x का स्क्वायर कर दिया हमने। क्या कर दिया? 3x का स्क्वायर और ये 7y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 इंटू 3x इंटू 7y, यही तो होगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 7 जा 42xy आ जाएगा। अब देखने से क्या लग रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द value of x equal to 12 and y equal to 5, we get right? अब इसमें x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 12 माइनस 7, y की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर हो गया। 12 3 जा 36, 7 5 जा 35 का स्क्वायर हुआ। इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आएगा? 36 माइनस 35 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हो गई? 1। ये आंसर हुआ। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे? यस सर। Check whether the following are quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। प्रिय बच्चों, इसमें हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है? ये हमें चेक करना है। आइए चेक करते हैं। सॉल्यूशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर टू x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये बेटा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इक्वल टू, अब इसको ब्रेक करेंगे 2x माइनस 6। इतना क्लियर? यस सर। implies that x square plus 1 plus 2x equal to 2x minus 6। क्लियर? यस सर। अब इसमें क्या करते हैं? 2x माइनस 6 की ट्रांसपोजिंग लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं, तो इसके साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, ये माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल आउट, ठीक है? ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। implies that x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है? अब ये यहाँ पर क्या है? x की पावर क्या है? 2 है। हैं? तो ये क्या हो गया? which is, यहाँ पे लिखेंगे which is 1 which is of the
विच इज ऑफ गलत होगा, विच इज ऑफ द फॉर्म, FORM, विच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। वेयर, फिर यहाँ लिखेंगे वेयर b इक्वल टू 0। इतना नोट डाउन कीजिए, इतना नोट कर लिया? बता दें? Yes, sir. दस माने इस प्रकार 10 x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 x माइनस 3 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़े। Yes, sir. बिठा दें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है 7 का सेकंड पार्ट, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 विद ब्रैकेट 3 माइनस x। ये क्वेश्चन है, इसे भी चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये चेक करना है बच्चों। इसका सलूशन होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ये क्वेश्चन था, -2 फिर ब्रैकेट 3 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 जा 6। ब्रैकेट के पहले किसकी साइन है? माइनस की। अंदर की साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। याद रखो बच्चों, इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव, एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट तोड़ते समय अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये -6 प्लस ये क्या हो जाएगा 2x। क्लियर? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? -6 और 2x का ट्रांसपोज करेंगे किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। ट्रांसपोजिंग ऑफ -6 एंड 2x to left hand side, then sign will be changed. x स्क्वायर माइनस 2x, ये बटा प्लस 2x है, इस तरफ आएगा क्या होगा? -2x। ये -6 है, इस तरफ आएगा प्लस 6 में हो जाएगा इक्वल टू 0। इतना क्लियर? इसको और सॉल्व करेंगे, ये आएगा निकल करके x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? 6 इक्वल टू 0। विच इज, अब ये क्या है? विच इज द फॉर्म, विच इज द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? इसके बाद लिखेंगे 10
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 नेक्स्ट ब्रैकेट 3 माइनस एक्स इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दें। इसके बाद क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट, इसे भी चेक करते हैं। चेक करना है। थर्ड पार्ट गिवन है इसका x माइनस 2, फिर है x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3। ये बच्चों आपका क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट गिवन है। ठीक है, इसे चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमें चेक करना है। आइए चेक करते हैं। सॉल्यूशन x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब इसमें हमने क्या है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लेंगे, क्या है? x है। x लिया, सेकंड ब्रैकेट बेटा x प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना क्लियर? अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म -2 है, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 1। सिमिलरली इसमें भी x लिया, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म -1 लिया, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? इम्प्लाइज दैट x में x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x, है ना? अब यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा बच्चों? -2x माइनस है, ये -2। सिमिलरली इसमें भी x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें भी माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ये भी हो गया -x माइनस 3। इतना क्लियर? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये निकल करके आएगा x स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन क्या है? -2x इज ग्रेटर देन x, वी अप्लाई द साइन नेगेटिव। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा -x -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर है, 3x में -x निकलेगा, क्या आएगा? 2x माइनस 3। ठीक है? अब x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों साइड हैं, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल्ड आउट। फिर आगे बढ़ा, इम्प्लाइज दैट -x -2 इक्वल टू 2x -3। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा? -x -2x -2 और ये -3 है, किस तरफ आएगा? +3 इक्वल टू 0 है। अभी क्या हुआ? -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आया। सॉल्व करने पे -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना नोट डाउन कीजिए। बिठा दें। इतना नोट डाउन कीजिए, तब इसका रीजन बताएं। बिठा दें। इसका रीजन लिखेंगे, विच इज
which is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a does not equal to 0 and b where a does not equal to 0 and b and c are any real number therefore it is not a quadratic है QUADRATIC quadratic इक्वेशन। इसको नोट डाउन कीजिए। रीजन नोट डाउन किया? यस सर। मिटा दें? यस सर। क्वेश्चन 7 का फोर्थ पार्ट को आइए चेक करते हैं। फोर्थ गिवन है, फोर्थ पार्ट गिवन है x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। क्लियर? 7 का ये सेकंड पार्ट है। 7 का क्या है बच्चों? ये गिवन है सेकंड पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x माइनस 3 2x प्लस 1 फिर है x प्लस 5। इसमें से x लेंगे, x लेंगे 2x प्लस 1 में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 2x प्लस 1। ठीक है। फिर माइनस 3 लिया, दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस 1। फिर इसमें बच्चों x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5x implies that। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा implies that x का 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर है, x का 1 से मल्टीप्लाई x। अब यहाँ ब्रैकेट के पहले किसकी साइन है? माइनस की साइन है। अंदर की साइन क्या होगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। 3 2 जा 6x। ये माइनस है तो माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x। इतना क्लियर? यस सर। अब हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड से x स्क्वायर का ट्रांसपोज कर लेते हैं और 5x का ट्रांसपोज कर लेते हैं। किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड। जब हम ट्रांसपोज करेंगे x स्क्वायर और 5x का तो इसके साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x है और इस तरफ आया तो ये माइनस 5x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। इम्प्लाइज दैट ये होगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों देखो ये हमारा क्या है? माइनस x
माइनस एक्स कहां से आ गया है? 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ये है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ट्रांसपोज इस तरफ किए तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स है, और 5x का ट्रांसपोज इस तरफ किए तो माइनस 5x, ऑलरेडी माइनस 6x गिवन है लेफ्ट हैंड साइड का, ये माइनस 3 है, ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, इतना सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ये x है, ये माइनस 5x है, ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। इतना नोट डाउन कीजिए। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इतना नोट डाउन कर लिया, इसको मिटा दें, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे बताइए, which is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है। where a does not equal to 0, thus x square minus 10x minus 3 equal to 0 is a quadratic, quadratic equation, ये इसका रीजन हम लिखेंगे, which is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a does not equal to 0, thus x square minus 10x minus 3 equal to 0 is a quadratic equation। बिटा दें। Yes sir। क्वेश्चन नंबर 7 का 5 पार्ट, इसमें भी बच्चों हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। ये 5 है, इसको ब्रैकेट में इसी तरह बना दें। इसका सलूशन फर्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से 2x लिया, सेकंड ब्रैकेट x माइनस 3, इसका माइनस 1 लिया, सेकंड ब्रैकेट x माइनस 3, फिर इसमें से x लिया, इसका सेकंड ब्रैकेट x माइनस 1, फिर प्लस 5 लिया, सेकंड ब्रैकेट x माइनस 1, क्लियर। Yes sir। अब 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x, माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये बच्चों माइनस x प्लस 3, इसमें भी x में x का मल्टीप्लाई किए क्या आया, x स्क्वायर, क्लियर। यस सर। फिर x का माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया, माइनस x, 5 का x से मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस 5, इतना क्लियर। Yes sir। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा
2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, ये ऐड होकर के माइनस 7x प्लस 3 होंगे इधर x स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्या है कंडीशन, 5x इज ग्रेटर देन माइनस x, वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव। यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों 4x माइनस 5x। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? implies that 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x है, इस तरफ क्या है 4x, इस तरफ आया तो माइनस 4x, और ये प्लस 3 है, माइनस 5 का ट्रांसपोजिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ये प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर लेस होगा, ये क्या आएगा x स्क्वायर और ये 11x हो जाएगा है, और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए, तब इसका रीजन बताएं। नोट कर लिया? यस सर। इसमें लिखेंगे which is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a does not equal to 0, thus x square minus 11x plus 8 equal to 0 is a quadratic quadratic इक्वेशन। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया? बिठा दें। क्वेश्चन गिवन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका गिवन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का 7 पार्ट है। गिवन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x फिर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर बच्चों किसका फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर फिर 2ab, 2 इंटू x इंटू 2 इक्वल टू। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2x क्यूब माइनस 2x। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं।
एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और ये 4x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर? अब इसको और सॉल्व करते हैं। x 2x क्यूब है, कितना है ये 2x क्यूब। हमने क्वेश्चन क्या लिया था x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर 2x x स्क्वायर माइनस 1। ये 2x का क्या है बच्चों क्यूब है। इसको इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं माइनस 2x का क्यूब, फिर लिखते हैं x स्क्वायर और ये क्या लिखा है 4x है। माइनस 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्या आएगा 2x है और ये क्या है प्लस 4। इतना क्लियर? और सिंप्लीफाई करते हैं 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर 4x प्लस 2x मिल करके 6x प्लस 4। ठीक है, यही तो आया। यहाँ पर इस साइड हमने जब ट्रांसपोज किया था यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच, इसको नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया? क्या दें? इसका रीजन क्या लिखेंगे which is not of the form ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 है। a does not equal to 0, thus x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट a quadratic 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 इक्वेशन। ठीक है, ये इसका रीजन होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये ज्ञान वर्धक लगे, आपके प्रोग्रेस में सहायक हो, तो आप इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।